A very good morning to your students and welcome to my channel Edifly JEE NEET. So like in previous class I have discussed about the characteristics of core data and I have given you the flow chart and how we are going to study the core data. Fine. So this is the subphylum Craniata. A craniata is done without brain and now we are studying about craniata of vertebrata. These are the subphylums. First they are divided into two classes, Agnatha, Gnathostomata. Agnatha means they are without jaws. Fine. Jaw bones, jaws nahi hote. And this is with jaws. Fine. Now Agnatha is divided into two parts, ostracodermy, cyclostomata. Ostracodermy has extinct. So we want to study ostracodermy because they are extinct, so no need to study. We'll study cyclostomata. So we'll start from the cyclostomata today. I'm showing you the flow chart and I'll tell you which part to study when. So we'll study cyclostomata. This is extinct, so we are not going to study. Gnathostomata has two super classes. One is species and the other is tetrapods. Tetrapods में ये चार आते हैं, Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia. In species, three classes are there: Placodermy, Chondrichthyes, Osteichthyes. This Placodermy has been extinct. So since Ostracodermy and Placodermy extinct, so we are not going to study this part. We'll study Chondrichthyes and Osteichthyes from species, and from Agnatha we'll study only cyclostomata. Fine. And after that, completing the species, we'll go to Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia, separate phylum. So today we are going to start from cyclostomata because these are extinct, so we are not going to study them. We'll study about cyclostomata, and after cyclostomata we'll go to species. So let's see cyclostomata, their general characteristics. Fine. So let's discuss about cyclostomata today. Fine. Cyclostomata, very common example is lampreys and hagfishes. Very common example for cyclostomata is lampreys and hagfish, remember. Fine. Next is they are the most primitive vertebrates. बहुत पुराने ancient time से they still exist right now. General characteristics में बात करते हैं. Habit and habitat. Where do stay? They basically lives in the sea, but they come to the for gamete release in the river. वो river में आके अपना gamete release करते हैं. Basically they lives in the sea. और lamprey attaches to larger fish by suctorial mouth. How do they feed on other animals? How do they take the food? खाना कैसे लेते हैं? They will suck larger fish से वो लोग खाना ऐसे suck करते हैं. उनके पास suckers होते हैं. Attaches to larger fish by suctorial mouth. And they are known as sanguivores. Sanguivores. जैसे we are omnivorous, herbivorous, carnivorous होते हैं. So they are sanguivores क्योंकि वो लोग दूसरे जानवर से अपना खाना निकालते हैं. Basically they parasite कह सकते हैं उनको. Suck करते हैं mouth से. So they are known as sanguivores. Fine. So this is about habit and habitat. Example, you have to remember lamprey and hagfishes. We'll see some more important characteristics. So now we'll see about the body form in case of that cyclostomata. The body is long eel-like form. ऐसे होती है इनकी body. eel I hope आपने eel fish देखा होगा, ठीक है ना. और ये tail region होता है. यहाँ caudal fin होता है. I don't know whether it's visible or not to you. ये caudal fin होता है. Caudal fin. फिर यहाँ आइस होगा ही. यहाँ पे डॉर्सल फिन होता है इनका. This all supports the organisms. I'm showing you the Petromyzin amyxin. कोई भी पकड़ लो, Petromyzin ही है example. Petromyzin. Just giving you the basic diagram. Body is long eel. इस तरह का body form होता है उनका. नेक्स्ट, नो पेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट. पेयर्ड फिन्स नहीं होता, लेकिन इनमें कॉर्डल फिन होता है. ये कॉर्डल फिन, डॉर्सल फिन होता है, एंड दैट सपोर्ट्स दिस फिश पेट्रोमाइजन.
मीडियन फिन सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस फिन रेज आर प्रेजेंट, यहाँ पे कार्टिलेजिनस, फाइन, ये इट इज कार्टिलेजिनस, उनका जो बॉडी कैसे है, कार्टिलेजिनस है. Notochord will persist throughout the life. They don't have temporary notochord. In those organisms, notochord is present throughout the life. Next example, very important. The two very important examples of cyclostomata is Petromyzin and Myxin. Petromyzin and Myxin. Fine. So this is about the body form. कैसे दिखते हैं, क्या क्या उनके structures है, external structures. So this is about body form. Now we'll see about digestive system. So now we'll talk about digestive system कैसा होता है उनका. फाइन. डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ के बारे में पढ़ेंगे. माउथ इज जॉलेस, जॉ नहीं है इनमें. सर्कुलर है एंड सक्टोरियल, मतलब सक करके किसी भी उसको चूस के खाते हैं खाना, सक कर लेते हैं, ठीक है, फिर खाते हैं. टंग क्या है, टंग बियर्स बोनी टीथ, टंग हैज बोनी टीथ एंड दैट बोनी टीथ हेल्प्स इन सकिंग. फाइन. Intestine has a fold, that is typhlosole. Very important. Remember this word. Tongue has a fold. Sorry, the intestine has a fold, namely typhlosole. The fold of the intestine is nothing but typhlosole. ज्ञान बांट के रख लीजिए कि क्वेश्चन आ सकता है, बार बार बोल रहे हैं. typhlosole याद रखिए, कहाँ पढ़े थे, लिख लिख के पढ़िए, अच्छा होगा. फाइन. रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, respiratory structure, how do they take respiration? Respiratory system includes 5 to 16 pairs of gills placed in sac-like pouches. They have 5 to 16 pairs of gills. एक पूछ की तरह एक पूछ बना था, उसमें सारे रहते हैं, ठीक है, इस तरह से रहता है स्ट्रक्चर, ठीक है. तो 5 to 16 pairs of gills placed in sac-like pouches. So this is about respiratory हो गया, digestive हो गया, ठीक है. और अब बात करते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. फाइन. सो नाउ लेट्स सी अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ब्लड कैसे पंप होता है, हाउ द सर्कुलेशन टेक्स प्लेस. सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली द हार्ट इज टू चैम्बर्ड, वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल. हमारे में क्या होता है, इन ह्यूमंस 4, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स. फाइन. बट इनमें क्या होता है, दे आर टू चैम्बर्ड हार्ट, दैट इज वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल. फाइन. Sinus venosus is present, but there is no conus arteriosus. RBCs कैसा होता है, सर्कुलर, ऐसे सर्कुलर शेप में इनकी RBC होती है, irregular and nucleated. Nucleus is present, nucleated. Fine. Excretion कैसे होता है, excretion is by kidneys, like we have kidneys. Excretion is by kidney. So they have kidneys and circulatory system. Blood कैसा होता है, nucleated होता है, और कितना chambered heart होता है, 2 chambered heart होता है. Fine. So this is about circulatory and excretory. अब हम सेंस ऑर्गन्स देखेंगे, नर्वस सिस्टम कैसा होता है. फाइन. सो लेट्स सी. सो नाउ विल सी अबाउट नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम क्या होता है, इनमें क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं. दे हैव 8 to 10 pairs ऑफ क्रेनियल नर्व्स. फाइन. याद रखिएगा. सेंस ऑर्गन्स कैसा होता है, सेंस ऑर्गन्स क्या होता है, ऑल्फैक्टरी सैक इज सिंगल एंड मीडियन. सिंगल होता है, ऑल्फैक्टरी मीन्स, ऑल्फैक्टरी को ही सेंस बोलते हैं, नोज है ना, नोज को. ईयर क्या होता है, ईयर कंसिस्ट ओनली ऑफ मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, इनर इंटरनल ईयर. और लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके पास लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स होता है. व्हाट डू, दे विल डिटेक्ट वेव्स प्रेजेंट इन वाटर, वेव्स एंड करेंट्स. अगर समुद्र में करंट बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे दैट एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड, बहुत ज़्यादा प्योरिटी होती है वाटर की, बहुत ज़्यादा हाई टाइड्स होते हैं, उसमें करंट बहुत ज़्यादा तेज होता है. एंड इन दिस ऑर्गेनिजम्स लेटरल सलाइन सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट दैट विल हेल्प द साइंटिस्ट टू डिटेक्ट द waves and currents that is produced in water. So this organisms is really very helpful for us, for everyone itself. कि देखिए अगर वो साइंटिस्ट को बता रहे हैं कि उनमें वेव्स ज़्यादा है, करंट ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है किसी की जान तो नहीं जाएगी ना. अगर करंट ज़्यादा होता है तो वहाँ पे स्विमिंग करना मना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ. क्योंकि जब हम घूमने गए थे, अब इट्स स्मॉल स्टोरी, व्हेन वी वेंट टू पोर्ट ब्लेयर, जब हम घूमने गए थे वहाँ, तो नील आइलैंड में एक जगह था जिसका वो लक्ष्मणपुर बीच वन था. ठीक है, लक्ष्मणपुर वन था, तो उसमें क्या था, बहुत स्ट्रॉन्ग करंट थे. उसकी जो वाटर क्वालिटी थी ना, अगर मेरे पास वीडियो होगा तो मैं दिखाऊंगी, बहुत प्योर है उसकी वाटर.
आप अगर थोड़े अंदर भी जाओगे तो ऐसा लगेगा कि पानी हमें खींच के अपनी ओर ले आ रहा है। करंट इतने हाई थे कि दैट एरिया वॉज नॉट फॉर स्विमिंग और जस्ट टू एन्जॉय एनी वाटर एक्टिविटी। नो वाटर एक्टिविटी वॉज कैरिड डाउन देयर एंड वी डोंट हैव द परमिशन टू स्विम इवन देयर, बिकॉज कुछ साल पहले किसी ने स्विमिंग किया था वहाँ पे, इवन नोइंग दैट द वाटर करेंट्स आर वेरी हाई देयर, दैट पर्सन डाइड। तो क्या होता है कि वाटर करंट ज़्यादा जहाँ होता है वहाँ साइंटिस्ट को पता चल जाता है, और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हेल्प करते हैं साइंटिस्ट को कि वाटर करंट ज़्यादा है तो ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, ये सिर्फ वर्किंग पर्पज़ के लिए, ऐसा नहीं कि कोई भी जाके वहाँ स्विमिंग कर रहा है, वाटर राइड्स कर रहा है, मस्ती से नहा रहा है। बहुत लोगों को स्विमिंग आता है, लेकिन जब वाटर करंट इतना तेज़ होता है तो स्विमिंग भी कोई काम की नहीं होती है। फिर वाटर करंट इतनी तेज़ होती है कि वो अपनी ओर खींच के ख़त्म कर देता है उस इंसान को। तो वो एरिया थी जहाँ हम घूमने गए थे, लक्ष्मणपुर नील आइलैंड, आप लोग भी सर्च करके देख लें। वाटर प्यूरिटी बहुत अच्छी थी और वहाँ पे वाटर करंट बहुत ज़्यादा था, तो हम लोग बस गए घूम के चले आए। फ़ोटो तो इट्स वेरी कॉमन, ऑब्वियसली जब जाओगे आप फोटोज तो क्लिक करोगे, जगह अच्छी है। तो अगर मेरे पास पिक्स होंगे या वीडियो होंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वाटर प्यूरिटी इतनी ज़्यादा थी, वाटर करंट बहुत हाई था वहाँ पे। तो वहाँ पे लोगों को जाना, लाइक जाओ घूम के चले आओ, बट नथिंग वॉज देयर टू डू। सो बस छोटी सी कहानी बता दी ताकि आप लोग भी मतलब बोर ना हो किसी है मैम क्या पढ़ा रही है ना, थोड़ा बहुत जानना चाहिए वाटर करंट क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होते हैं ना। फाइन, तो ये हो गया हमारा नर्वस एंड सेंस। अब हम बात करते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स। फाइन, सो अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप कि मेरा क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी टर्मिनोलॉजी आपको ना समझ में आता होगा, एक टाइम ड्यूरेशन में मुझे आपको कंप्लीट करना है। नीट के एग्ज़ाम्स आपके 13 सितंबर को। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू जस्ट मेल मी और व्हाट्सएप मी, और यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेशन। फाइन, और अच्छे से एन्जॉय करके पढ़िए। इफ़ यू एन्जॉय इन स्टडी देन कुछ आपको बोझ नहीं लगेगा। एन्जॉय करके पढ़ेंगे तो एवरीथिंग विल बी ईजी फॉर यू। फाइन, सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज गोनाड इज सिंगल एंड विदाउट ए गोनाडक्ट। गोनाड सिंगल होते हैं, जो दो नहीं होते हैं, एक ही गोनाड होते हैं उनके। गैमेट्स क्या कहते हैं? गैमेट्स कहाँ शेड होते हैं, गैमेट्स कहाँ रिलीज होता है? बेसिकली सेड इनटू द सीलम, दे एस्केप थ्रू द व्हेन दे एस्केप थ्रू द यूरिनोजेनिटल अपर्चर होता है जहाँ, वहाँ पे उनको गैमेट शेड होते हैं, वहाँ से वो खुद एस्केप हो जाते हैं। जो रिप्रोडक्शन है एस्केप हो जाते हैं, और बेसिकली वो ना वाटर में जाते हैं उनकी फर्टिलाइजेशन करने के लिए, रिवर में जाते हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए। ब्रीडिंग सीजन होता है उनका, उस ब्रीडिंग सीजन में वो रिवर में जाते हैं, सी में रहते हैं बट रिवर में जाके अपना क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। फाइन, तो रिप्रोडक्शन हो गया। अब हम बात कर देंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ, क्या पढ़ रहे हैं हम, साइक्लोस्टोमाटा। फर्टिलाइजेशन क्या है? इट्स एक्सटर्नल, मतलब पानी में जाके ही रिलीज करते हैं गैमेट्स। लाइफ हिस्ट्री में इंक्लूड्स फिल्टर फीडिंग लार्वा कॉल्ड एनमोसीट, ये याद रखिएगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स एनमोसीट लार्वा। फाइन, इट ग्रेटली रिजेंबल्स द लैंसलेट इन स्ट्रक्चर्स एंड मोड ऑफ लाइफ। लैंसलेट को कहते हैं ब्रैंकायोस्टोमा, और याद करिए कि ब्रैंकायोस्टोमा मैंने कहाँ पढ़ाया है, ये आपका होमवर्क। ब्रैंकायोस्टोमा कहाँ पढ़ाया है, उसके स्ट्रक्चर्स के साथ उसका रिजेंबल मतलब सिमिलैरिटीज है विद स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ लाइफ, दैट दिस एनिमल्स हैव द सिमिलैरिटीज विद ब्रैंकायोस्टोमा, दैट इज लैंसलेट। एंड रिमेंबर दिस टू वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, पेट्रोमाइजन एंड मैगजीन। पेट्रोमाइजन को क्या कहते हैं, लैम्प्रे और हैगफिश, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम टेलिंग अगेन, दोनों नाम आपको जानना जरूरी है ना। फाइन, सो ये हो गया आपका एग्जाम्पल हो गया। अब हम डिफरेंसेस देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि पेट्रोमाइजिन और मैगजीन की डिफरेंसेस क्या होती हैं। फाइन, सो नाउ विल सी द डिफरेंसेस बिटवीन लैम्प्रे एंड हैगफिश। बेसिक डिफरेंसेस जान लेते हैं। लैम्प्रे क्या होता है, मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों में रहते हैं, बट हैगफिश दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, दे ओनली स्टे इन द वाटर, मतलब मैराइन वाटर, नॉट फ्रेश वाटर। लैम्प्रे क्या होता है, दे हैव 7 pairs of cranial nerves and hagfish they have 6 to 15 pairs of cranial nerves. They have gill slits. I'm sorry. 7 pairs of gill slits are present in case of lamprey, and hagfish 6 to 15 pairs of gill slits. Fine. They have 10 pairs of cranial nerves in case of lamprey, and hagfish has 8 pairs of cranial nerves.
सेक्सेस इज सेपरेट, दैट इज डायशियस. यहाँ सेपरेट नहीं होता है, सिंगल सेक्स में ही मेल फीमेल होता है, दैट इज हर्माफ्रोडाइट. फाइन. ब्रेन इज बेटर डेवलप्ड इन केस ऑफ लैम्प्रे, बट इन हैगफिश ब्रेन इज पुअरली डेवलप्ड. फाइन. एग्जाम्पल याद रखिए, लैम्प्रे का पेट्रोमाइजर एंड हैगफिश का माइग्जिन. दोनों एग्जाम्पल यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू. सो दिस वॉज ऑल अबाउट साइक्लोस्टोमाटा. तो मतलब हमने आज क्या कंप्लीट किया? वी हैव कंप्लीटेड अग्नाथा, दैट इज विदाउट जॉज. इनमें जॉ नहीं होते, दे आर जॉलेस. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड अग्नाथा जॉलेस. नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट द अग्नाथोस्टोमाटा, दैट इज जॉ, जिनके जॉ होते हैं. तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? फिशेस से करेंगे. फिशेस मीन्स सारे फिशेस उसमें इंक्लूड होते हैं. फिशेस मछलियाँ, प्यारी प्यारी मछलियाँ इंक्लूड होती हैं फिशेस में. सो विल स्टडी फिशेस, कॉन्डिक्टाइड्स, ऑस्टिक्टाइड्स शुरू करेंगे, फिर एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमलिया करेंगे. ठीक है. तो विद दिस आई विल कंक्लूड माई क्लास टुडे. नेक्स्ट क्लास विल मीट विद पॉजिटिव एनर्जी and we'll start the pieces. Fine. So thank you so much.